Good morning, ma'am. Good morning, Varsha. I'm waiting for the some other students. Let them to join. Okay. So, students, have you done your study homework? First to 5 Yes, questions. मैम मुझे मैम 5 वाला एक बार मैम समझ में नहीं आया. Question number 5. Okay, I'll repeat it today. Okay. Check. Yeah, fifth is slightly different from third and fourth. I'm sharing questions so that you can see also. And if you have book, everyone, I'm saying to you, अगर आप लोग के पास book है, so please open that. ठीक है, आप क्वेश्चंस को बहुत ही प्रॉपरली आप देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, बिकॉज सम टाइम किसी की नेटवर्क प्रॉब्लम होती है तो क्लियर नहीं दिखती है. Okay, question number 5. Firstly, I'm talking about, and then I'll proceed in some other question. Yeah, this is a question here, 13.4. Yesterday we have discussed and we have finished till question number 5. Okay, so 5th again I'm telling you how could you understand it better. This question number 5th is a hemispherical bowl made up of brass has inner diameter. Simple है. A hemispherical bowl. Suppose this is the hemispherical bowl made of brass. This is made up of brass and inner diameter is given. Inner diameter it means simply इसकी diameter given है which is 10.5. तो diameter कल मैंने आपको बताया था, if diameter is 10.5 and if we want to convert into fraction, if we want to write into fraction, then what could I write? 21/2. Okay, so 21/2 is the diameter. मैंने इसको बस कुछ नहीं करा, 10.5 को बस convert करा है. किस में convert किया है? डायमीटर को मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है. ठीक है, नाउ व्हेन यू विल फाइंड द रेडियस, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? तो रेडियस में मेरे लिए आप क्या करते हो, आप 2 से डिवाइड करते हो. तो यहाँ पे जब 2 से डिवाइड करोगे तो कितने हो जाएंगे रेडियस? 21/4. राइट. मैंने ये क्यों किया है, इसका रीजन ये था कि बिकॉज we are trying to make our calculation easy, so that's why I have converted into this fraction. Now the question is find the cost of tin plating it on the inside at the rate of this. Okay, tin plating. तो tin plating mainly क्या है ना कि this is bowl. तो bowl का जो ऊपर जो इसका top surface होगा वो क्या है, होगा open होगा. Okay, this is open from the top. It means only आपको tin plating इसमें ही करने होंगे. And when you will cover this much area, so this is called CSA. ये क्या होता है? CSA होता है. ये आपको समझना है tin plating किस में करनी है. तो tin plating mainly आपको CSA कर्व सरफेस एरिया में करनी है आपको ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ व्हाट? तो 16 रुपीज पर 100 centimeter square. Okay, so this is a question. Now I am showing you the solution. Here we have इनर कर्व सरफेस एरिया. तो मैंने अभी आपको जस्ट बताया इट इज ओपन. अगर मैंने जैसे इसको इस साइड से रखा है तो दिस इज विल बी ओपन फ्रॉम दिस साइड, बॉटम साइड. एंड अगर आप इसको सिंपली ऐसे स्टैंड करते हो बाउल को तो ये अब से क्या होगा, ओपन होगा. तो इसमें मेरे लिए आपको पहले इसकी इनर सरफेस एरिया निकालनी होगी. व्हेन यू विल फाइंड द एरिया देन यू कैन फाइंड द कॉस्ट. तभी तो आप इसकी कॉस्ट फाइंड कर सकते हो, बिकॉज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है? 16 रुपीज है. तो हेयर वी हैव फाउंड फर्स्ट हेयर inner curved surface area of this hemisphere. Formula क्या होता है? 2 pi r square. So here we have applied this formula CSA of hemisphere 2 into pi into. अभी just मैंने बताया कि radius आपकी क्या होगी. So radius आपकी कितनी है? 21/4. This is your radius. Okay. So radius हमने 2 times लिखा. When we have calculated it, we are getting the answer as this. Okay. हमें आंसर क्या मिले? 11 into 3 into 21/4, which is 693. Yesterday you have told me that कि मैम इसका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? 693/4. So this centimeter square is your
कर्व सरफेस एरिया। जब हमने कर्व सरफेस एरिया फाइंड कर लिया, नाउ द क्वेश्चन अराइजिंग हियर कि अगर 16 ओके 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट 16 रुपीज है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी होगी? 16/100। इजंट इट हियर सचिन? या सो अगर इतनी सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 693 हमारे पास टोटल एरिया कितनी है? 693/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसकी कितनी कॉस्ट आएगी? तो अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट 16/100 है, तो इतनी कितनी होगी? तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे, राइट? जैसे मैं आपको क्या बताती हूँ कि इफ वन पेन रुपी सॉरी कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज 5 रुपीज, देन मैं अगर आपसे पूछती हूँ कि 6 पेन की कॉस्ट कितनी होगी, देन व्हाट आर यू डूइंग? यू आर जस्ट मल्टीप्लाइंग विद इट, राइट? तो आप बताते हो मैम टोटल कितने होंगे? 30 रुपीज होंगे। तो सिमिलरली हियर आल्सो वी हैव टू मल्टीप्लाई। तो हमने कॉस्ट इसकी कंप्लीटली टोटल फाइंड करी 693/4 इंटू 16/100। यहाँ पे मैंने क्या किया कैलकुलेशन में? जस्ट 4 16 को कट करा है यहाँ पे 4 से, एंड हमने इस 100 को यहाँ पे हम कट कर सकते थे, लाइक 4। अब 4 से 100 को तो कट कर सकते हो 25 टाइम्स में, राइट? बट हेयर आई एम नॉट डिडक्टिंग। व्हाई? बिकॉज जब भी अगर आपको डिनोमिनेटर में 100 मिले, 10 मिले, 1000 मिले, डोंट कट दैट, ओके? आप उसको कट मत करो, सिंपली आप मल्टीप्लाई करो। न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया, एंड जो हमने मल्टीप्लाई किया, हाउ मेनी जीरोस आर इन डिनोमिनेटर? 2 जीरोस है। तो हमें क्या करनी है? बस 2 आफ्टर फ्रॉम राइट हैंड साइड हमें 2 डिजिट के बाद डेसिमल प्लेस करनी है। दिस विल बी योर आंसर। इज इट क्लियर नाउ सचिन? यस मैम। बिकॉज देखो अभी हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं 13 चैप्टर, दैट इज बेस्ड ऑन सिचुएशन। सो आपको ये फाइंड करनी है कि किस कंडीशन में हमें सीएसए अप्लाई करनी है, एट व्हाट सिचुएशन वी हैव टू अप्लाई टीएसए और वॉल्यूम, राइट? तो ये मैंने आपको बताया भी है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आप क्या फाइंड करोगे। इज एनी अदर क्वेश्चन स्टूडेंट you have? And any other student, do you have any kind of doubt? मैम हमने 16/100 कैसे लिखा? 16/100 कैसे लिखा? Okay, I'm telling you this 100 centimeter square, okay? 100 centimeter square की कॉस्ट कितनी है? ₹16। सिंपली है, ठीक है? सिंपल आपको यहाँ पे दिया हुआ कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट इतनी है। तो अगर यहाँ पर अगर ये मैं बोलूँ कि 30 पेन की कॉस्ट, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ, 30 पेन की कॉस्ट, ठीक है? और 30 पेन की कॉस्ट यहाँ पर आपकी दी हुई है 150। तो 1 पेन की कॉस्ट कितनी होगी? If the cost of 30 pen is 150 rupees, what will be the cost of 1 pen? मैम 5 रुपीज। 5 rupees. Devika, tell me please बच्चा, क्या होगा यहाँ पे? मैम हमें इसमें डिवाइड करना है। Yeah, we are dividing here for finding the cost of 1 pen, okay? So we are dividing 0 cancel with 3 5s are 15. Similarly, if the 100 centimeter square cost is 16 rupees, then what will be the cost of 1 centimeter square? We have to divide it, okay? So हमें यहाँ भी divide करनी है, तो हमारे पास जो 1 centimeter square की cost होगी, that will be your 0.16. कितनी cost आएगी? ठीक है, ये आपके होंगे। यस मैम। एंड जब आपकी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट अगर फाइंड हो गई, एंड इफ आई एम आस्किंग 5 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या होगी, देन व्हाट विल यू डू? मैम मल्टीप्लाई। या सो वी विल हियर मल्टीप्लाई। तो 16 5s are 80, इट मींस 0.80, इट मींस कितने होंगे? 0.8। तो आप बता सकते हो। तो हमने इस क्वेश्चन में भी किया है। एक्चुअली इट इज गिवन इन फ्रैक्शन, सो दैट्स व्हाई यू हैड सम प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड, ठीक है? यहाँ पर फ्रैक्शन में आया इसलिए आपको मे बी प्रॉब्लम होगी। नाउ इट इज क्लियर देविका? यस मैम। ठीक है। किसी स्टूडेंट को और कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में टिल 5, फर्स्ट टू 5? नो मैम।
Okay, now I'm talking about question number 6. Have any student have any student done that question number 6? Yes, ma'am. Who has done? Ma'am, Rohit. Rohit. Okay, Rohit. So did you get your answer? Six आपके answers right हो आ गए? Ma'am, 1 minute. And how many students have tried some 6, 7, 8, 9 में से कुछ questions try किया है? किसने किसने try किया है? Ma'am, मैं रोहित. Okay, Rohit, fine, very nice. आपने try के question number 6 try किया है. 7 किसने किसने करा है? Ma'am, 7, 7 8, किसी ने 9 try सारे. किया है? 7 थोड़े से डिफरेंट थे, ये आपको समझने थे, ठीक है. 8 और 9 किसी ने ट्राई किया? 9 तो बहुत सिंपल था, सिर्फ आपको फॉर्मूला लिखनी थी. Yes, ma'am. सो फाइन. अगर आपने, बिकॉज मैंने आपको ट्राई करने को भी बोला था कि हम जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस नहीं किया यू को ट्राई दैट. सो क्वेश्चन नंबर 6 इज फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर. हमें रेडियस बतानी है स्फीयर की, whose surface area is given. Okay, so whose surface area is given, so it means what is given? Surface area, total surface area or curved surface area? मैंने आपको Total बताया surface है. area. From total surface. and here we have to find the radius. हमें क्या find करनी है? Radius find करनी है. Question number 6 I am telling you. Firstly आपको क्या करने है? Given. जो भी given होगा, that given points you will write. So what is given? Surface area of sphere, which is 154 centimeter square, and we have to find here radius. हमें क्या find करनी है? Radius find करनी है. Radius. ठीक है. So now, as we know that, you can write here. As we know that TSA or simply SA, surface area of a sphere is क्या होता है? 4 pi r square. 4 pi r square. This is given. This is given 154. So here we can write this 154. हमने 154 centimeter square लिखा is equals to 4 into what is यहाँ पे 22/7 आप मेरे लिए by default आप put करोगे. Okay. Into radius is not given, so as it is you can write this r. Okay. तो हमने यहाँ पे लिखा है. Now what we can do and how we can find this radius? So we will transpose this all numbers to this side, so we can get the answer of radius. So here I am transposing. मैंने r square लिखा है and transpose कर रही हूँ. तो जो divide में वो क्या होंगे? Multiply में. And this will come under this denominator. So you can write here 4 into 22. 22 sevens are 54, right? And here you can write 7 upon, okay, this is 7 into 7 and 4 को आप क्या लिख सकते हो? 2 into 2 लिख सकते हो. Yes, ma'am. So this is 7 upon 2 whole square. Why I'm writing? Because here in LHS radius आपकी square में, तो इसको भी मैंने square के form में convert कर दिया. Now this square can be cancelled easily. अब ये cancel हो गए, तो आपकी जो radius होगी वो क्या होगी? 7/2. And if you want to write in decimal, this will be 3.5. So this much centimeter will be your radius. All of you got this solution of question number 6? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Fine. Now question number 7. Question number 7 मैं पहले आपको question समझाऊंगी because this is really interesting and ऐसे questions paper में आते हैं. Even 10th में भी ask हो सकते हैं ऐसे questions. This is your question number 7. The diameter of the moon. You know moon की अगर बात की जाए तो moon की shape कैसी होती है? When we talk about moon, कैसा होता है? Sphere. Yeah. So the diameter of the moon is approximately 1/4 of the diameter of the earth. Now there is no any exact data is given. इसकी diameter कितनी है? यहाँ पे बिल्कुल नहीं दिया, बस statement लिखा है जो moon की जो diameter है, okay, that is a 1/4 of the diameter of the earth and this is earth. तो यहाँ पर हम समझेंगे कि this is earth and this is moon.
ओके सो मून की जो डायमीटर है वो अर्थ की डायमीटर की 1/4 है, तो इसकी डायमीटर अगर मैं सिंपली ले लूं x, तो मून की डायमीटर कितनी होगी? मैम x/4। x/4। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड इट? डायमीटर हमने कैसे Yes, फाइंड ma'am. किया? यस मैम। Yes, ma'am. तो जब हमने डायमीटर निकाले वी कैन फाइंड आल्सो रेडियस। तो रेडियस कितनी हो जाएगी मून की? टेल मी वेरी फास्ट। x अपॉन क्या होता है? हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ना डिनोमिनेटर में, मेरे डिवाइड करते हैं। मैम X x/8 upon upon 8. हो जाएगा। Yeah. 8 हो जाएगा। And what will be the diameter of Earth? Sorry, radius of Earth? ma'am, X upon? 2x. No. X upon 2. ठीक है, x upon 2 होंगे। So here, आपने जब दोनों की रेडियस फाइंड आउट कर ली है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया। तो आपको इन दोनों की क्या फाइंड करनी है? सरफेस एरिया की रेशियो बतानी है। सो इट इज नाउ वेरी सिंपल, हम इसको R1 एंड R2 के फॉर्म में इसको कंसीडर कर सकते हैं एंड देन वी कैन फाइंड आउट। सो आई एम शोइंग यू। सो हियर दिस इज मून। आप एक फिगर ड्रॉ कर लो, फिगर ड्रॉ करने से ये बहुत इजी हो जाएगा। दिस इज मून एंड दिस इज अर्थ। ओके, आप यहाँ पे लिख सकते हो गिवन क्या है? डायमीटर ऑफ द मून। डायमीटर ऑफ द मून क्या है? तो यहाँ पे आप लिख सकते हो लेट डायमीटर ऑफ द अर्थ इज x, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डायमीटर ऑफ द मून विल बी x अपॉन 4। रेडियस इसकी कितनी होंगे? x अपॉन 8 एंड रेडियस ऑफ अर्थ इज x अपॉन 2। वाई x अपॉन 2? अभी जस्ट मैंने आपको बताया डायमीटर, इफ डायमीटर इज 4 तो रेडियस आप क्या बताते हो? हाफ बताते हो, आप डायमीटर का हाफ करते हो। सो दैट्स वाई मैंने डायमीटर का क्या किया? हाफ किया है यहाँ पे। ओके, हमने दोनों की रेडियस फाइंड कर ली। हियर आई एम डिनोटिंग इट बाय, मैंने अर्थ मून को R1, ओके, एंड दिस इज R2। आई एम डिनोटिंग इट बाय R1 एंड R2। नाउ यू हैव टू फाइंड द रेशियो। सो रेशियो यू कैन राइट हियर। किसकी रेशियो बतानी है? सरफेस एरिया की रेशियो बतानी है। ओके, सो यू कैन राइट योर रेशियो ऑफ मून टू अर्थ। तो मून टू अर्थ का मीन यहाँ पे क्या है? पहले आप सरफेस किसकी बताओगे? सरफेस एरिया ऑफ मून। सरफेस एरिया ऑफ मून you will take at first, and surface area of earth. Okay, both are in the shape of a sphere. It means we will apply the same formula but in terms of pi r1 and pi r2. So 4 pi r1 square and 4 pi r2 square. Now this 4 pi cancelled easily. You can see here 4 pi cancel हो गए, तो हमें यहाँ तो हमें इसको कैलकुलेट नहीं करनी है। R1 and R2 square. So what was the radius of moon? Moon का radius क्या था? max R 4 upon 8. X upon 8. x upon 8 X upon 8 whole square. Fine. And what was the radius of Earth? x upon X 2 upon 2. X upon 2. Right. So this is our ratio. And then यहाँ पे आपको simple इसको solve करनी है. So you can write here x square upon 64 into this is your 2 to the 4 upon this x square. Right? हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। देखो मैंने कैसे कन्वर्ट किया। If the fraction is if your fraction is written in the form of like a upon b and c upon d. Okay, अगर इस फॉर्म में होता है तो आप क्या करेंगे? a upon b into d upon c. Right? AD upon BC. Like this आपके ये क्या होंगे? आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो। So I have मैम हमने converted वहाँ into पे this. मैम 4 क्यों लिया है मैम? उसमें तो मैम D2 है मैम। स्क्वायर मैम कर लिया Yeah, this is 2 to the 4 and 8 8 the 64. Here I have written. yes मैम। Okay. So now this x square is cancelling. And 4 से आप cancel करोगे 64 को कितने टाइम्स में कट होंगे? 16. मैम 16
So 1/16 you are getting as a ratio of the surface area of moon to surface area of earth. Okay, so this will be your required ratio, and ratio के form में कैसे लिखना है, you know that 1:16 you can write. 16. तो ये आपके आंसर हो जाए. ये सब कुछ समझ में आ गए क्वेश्चन? ये क्वेश्चन मैं दूं इस same, I mean same type of question. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, now this is moon and this is earth. The diameter of earth, okay, and now I am telling you the diameter of earth is half of the moon. Now find the ratio between them. The diameter of earth is half of the moon. What will be the required ratio from moon to earth? Diameter of earth is half of the moon. Okay, this is your statement. You have to find the ratio. What will be the ratio of the surface area? This is your question. Please do it fast and tell me the answer. Yes, students, can you tell me the answer? मैम 4 आया इसका आंसर. In ratio, you have to say the answer in ratio. देखो मैं यहाँ पर मैं डायरेक्टली फाइंड कर रही हूँ रेशियो. सो रेशियो ऑफ मून टू अर्थ मैंने आपको बोला है. सो इसकी रेशियो क्या होगी 4 पाई. दिस इज r1 स्क्वायर अपॉन 4 पाई r2 स्क्वायर. ओके, ये आपकी मून की है एंड दिस इज योर. सो मून मैंने यहाँ पे क्या लिखा, अर्थ इज हाफ ऑफ द मून. सो इसकी डायमीटर, सिंपली डायमीटर अगर d होगी तो इसकी क्या होगी d अपॉन 2, राइट. तो रेडियस यहाँ पे क्या हो जाएंगे इन टर्म्स ऑफ r आई एम टेकिंग. ओके, तो रेडियस क्या हो जाएंगे, x/2 हो जाएगा. ठीक है. ओके, अगर आप x में ले रहे हो तो ये x/2 आपकी है. तो इसकी रेडियस कितनी होगी, x/2 होगी. ओके, Yes. so x/2 होल स्क्वायर यू कैन राइट. एंड अर्थ की कितनी हो जाएगी रेडियस, x/4 हो जाएगा. 4 एग्जैक्टली. ओके, x/4. सो x/4 यू विल राइट. एंड मैंने अभी जस्ट बताया आपको कैसे इसको लिखना है. x/2 होल स्क्वायर इंटू 4/x, ये रेसिप्रोकल हो जाएंगे. ठीक है. सो x स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 16/x स्क्वायर. दिस इज कैंसल्ड एंड 4 जा 16. या यू आर सेइंग 4, तो आप 4 आप नहीं बताओगे, नीचे आपके क्या 1 भी है ना. सो योर रेशियो इज 4:1. किस रेशियो में डिवाइड हो गया, 4:1. 4:1. नाउ आई एम टेलिंग यू, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग. यू नो, मैं आपको समझा रही हूँ. यहाँ पर क्या है कि अगर मैं इसको हाफ करती हूँ तो ये क्या होगा, उसका डबल हो जाएगा. ओके, सो इट मीन्स अगर ये हाफ है तो रेशियो जो उसकी सरफेस एरिया होगी उसकी, दैट विल बी द डबल ऑफ द मून की डबल होगी. तो देखो हमने यहाँ पे मून का क्या हो गया 2 2 4, दैट इज 4:1 के रेशियो में डिवाइड होगा. और अगर ये यहाँ पर जब मैंने इसको कंसीडर किया था तो दिस वाज द क्या थे, ये आपके 1/4 थे. तो अगर ये 1/4 थे तो इट मीन्स इसकी रेशियो 1 आएगी और इसकी जो सरफेस एरिया होगी वो इंक्रीज होगी. ओके, इसकी सरफेस एरिया इंक्रीज होगी, इसकी सरफेस एरिया डिक्रीज होगी, बिकॉज इसकी जो रेडियस है वो क्या लेसर है अर्थ से. सो 4 4 क्या होगा 16.
सो कितनी आई मीन मल्टीपल ये बढ़ रही है आपकी, यहाँ पे कितनी आपकी इंक्रीज हो रही है, तो ये मेनली आपकी हो रही है क्वाड्रेंट। आप देख सकते हो अगर ये 1/4 था, ठीक है, इसका डायमीटर, तो ये कितने हो गए 1:16 के रेशियो में डिवाइड हुए। और अभी जो हमने लिया है वो क्या हमने लिया था 1 and 1/2। मेनली आपकी ये आपकी क्या दी हुई थी, उसकी डायमीटर दी हुई थी, तो ये क्या हो जाएंगे 2 2 is 4, इट मीन्स 4। जस्ट इसका आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। सो 4:1 के रेशियो में डिवाइड होंगे। इट मीन जस्ट ऑपोजिट होता है, जिसकी डायमीटर कम होगी उसकी सरफेस एरिया भी कम होगी, सिंपल है। जिसकी डायमीटर ज्यादा होगी उसकी सरफेस एरिया क्या होगी, ज्यादा होगी। ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस, हु इज सेइंग? Ma'am, Varsha. वर्षा। ओके वर्षा। क्वेश्चन में आपका था कि देयर आर 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, एक मून है और दूसरा अर्थ है। ओके, द क्वेश्चन इज सेइंग इफ द डायमीटर ऑफ मून इज 1/4 ऑफ द अर्थ। सो अर्थ से जो मून की डायमीटर अगर वो 1/4 होती है, तो 1/4 का मीन यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे अज्यूम करा है कि लेट द डायमीटर ऑफ अर्थ इज x। पहले अर्थ की आपकी डायमीटर आपको मालूम होगी, देन यू कैन फाइंड द डायमीटर ऑफ द मून, बिकॉज ये 1/4 है। तो अगर ये x होगा तो ये x अपॉन क्या होगा 4 होगा। आप इसको रेडियस के टर्म में भी ले सकते हो r/4। सो x/4 पहले हमने डायमीटर लिया। नाउ हियर वी हैव फाउंड द रेडियस फ्रॉम दिस डायमीटर। तो अगर डायमीटर हमारी x/4 है तो रेडियस क्या होगा, तो रेडियस d/2 आप करते हो, तो डायमीटर इज x/4, तो यहाँ पे आपको किससे मल्टीप्लाई करनी होगी, 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी फॉर फाइंडिंग रेडियस। तो x अपॉन कितने हो गए 8 हो गए। नाउ डायमीटर ऑफ अर्थ इज x, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी x/2। तो हमने यहाँ पर दोनों का हमने रेडियस फाइंड कर लिया, x/8 एंड x/2। जो हमने दोनों का रेडियस फाइंड कर लिया, सो व्हाटएवर द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड वी कैन फाइंड आउट। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, रेशियो पूछा है। किसकी रेशियो पूछा है, सरफेस एरिया ऑफ बोथ मून एंड अर्थ। सो मून एंड अर्थ की सरफेस एरिया क्या होगी, फॉर्मूला दोनों स्फीयर के फॉर्म में ही होगा। सो दैट्स व्हाई वी हैव अप्लाइड दिस फॉर्मूला 4πr1² अपॉन 4πr2²। 4π कैंसिल हो गए। तो आपको जब भी सरफेस एरिया फाइंड करनी होगी, यहाँ पर आपको इतना कैलकुलेशन नहीं करनी, आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो r1/r2², सिंपल। एंड r1/r2² जैसे इसको कैलकुलेट किया है, तो कैलकुलेशन में मैंने आपको बताया कि इफ क्वेश्चन इज लाइक दिस, अगर a/b होते हैं न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है, तो हमें a और d को मल्टीप्लाई करना है। a/b लिखा है एंड ये आपके रेसिप्रोकल हो जाएंगे व्हेन यू विल राइट लाइक दिस। अगर आपको इसको इस फॉर्म में लिखोगे, तो हमने यहाँ पे d/c करा है, तो हमने लाइक x² 8 जा 64 एंड x² 2 2 जा कितने हो जाएंगे 4। x² कैंसिल हो गया 4 से, जब आप कट करोगे 64 को 16 टाइम्स में कट होगा, तो रेशियो कितनी आ गई 1। अब आप देखो, आप देख सकते हो न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं है तो आपको लेने हैं। ओके, दिस इज 1, सो 1/16। सो ये 1/1:16 आपके क्या होंगे, रिक्वायर्ड रेशियो होंगे ऑफ मून टू द अर्थ। Yes, I know, Varsha. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Yeah, coming to the next question. Question number 8. This is your question number 8. A hemispherical bowl. अभी यहाँ पर this is not a sphere, ठीक है। अभी आपके पास क्या हेमीस्फेयर है। This is your hemispherical bowl. Question number 8 I am telling you is made up of steel 0.25 centimeter thick. इसकी जो thickness है, when you know that जो बाउल होती है उसकी अपनी एक thickness भी होगी, वो thickness कितनी है 0.25, this thickness, okay? ये कितनी दी हुई है 0.25. The inner radius of bowl is 5 centimeter, और जो inner radius है which is 5 centimeter. Find the outer curved surface area of the bowl. Question is asking about outer curved surface area of the bowl. Okay, question सबको समझ में आ गया। मैं आप solution बताऊं, क्या find करनी है आप। So question number 8 is
This is Ma'am, heavy spherical bowl. आप समझ 123.2. Yes, yes, who is saying? Ma'am, ma'am, answer है 123.25 centimeter square. Yeah, very nice. Who has done it? मैम Name पक्का बताओ. ऐप से देखा होगा। मैं कोई ऐप नहीं यूज करता। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर आपको कोई चीटिंग किसी को नहीं करनी है। अगर we are trying to understand this question, okay? This is your bowl and the thickness is given. जो इसकी thickness है, which is 0 point. कितनी thickness कितनी है? Tell me. 2.5. 2.5. And what is the inner radius? 5 5 centimeters. centimeter. 5 सेंटीमीटर। 5 centimeter. Then complete. अगर outer radius मैं अगर लूँ तो outer radius कितनी होगी? 5 plus 5 point plus 0.25 तो कितने हो जाएंगे? This is R1, okay? मैंने inner radius को, this is your inner radius R1 which is 5 centimeter and outer radius, okay? ये आपकी outer radius है। तो outer radius में inner जो radius होगी वो भी आप लोगे plus this thickness also you will take. हाँ, yes, 0.25. 5.25. 5.25 आपकी आउटर रेडियस हो सेंटीमीटर। जाएंगे। तो इसको हमने R2 से डिनोट किया है 5.25। पहले हमने इसके इनर रेडियस एंड आउटर रेडियस ये दोनों फाइंड कर लिया है, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया। आपको आउटर कर्व सरफेस एरिया निकालनी है। देन टेल मी व्हाट इज द सिंपली आपको बताने की कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है। हम 2 पाई r स्क्वायर। यस, सो आउटर कर्व सरफेस एरिया of the bowl which is 2 pi r square. But 2 pi r square आप यहाँ पर जब आप फाइंड करोगे इनर रेडियस, सॉरी यहाँ इनर रेडियस भी आपकी गिवन है, आउटर रेडियस भी गिवन है, तो यहाँ पर ये आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हो। ये आपको नहीं लेने हैं बिकॉज आउटर डायरेक्ट पूछा है। तो यहाँ पर आप कौन सी आप रेडियस लोगे? 5.25 5.25। तो 5.25 होल स्क्वायर। ओके, बस आपको इसको कैलकुलेट करनी है। यू विल गेट द आंसर 2 into 22/7 5.25 and into 5.25। ओके, इसको बस सॉल्व करोगे आप। किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो? तो हियर आई एम टेलिंग यू। देखो, डेसिमल हमने यहाँ पे रिमूव किया। ओके, जब डेसिमल रिमूव किया तो आप यहाँ पर कैसे कट कर सकते हो? 7 से क्या 5 to 5 कैंसिल होंगे? नो मैम। होंगे। प्लीज ट्राई इट अगेन। क्या 5 to 5 कैंसिल होंगे? यस मैम 75। 75 टाइम्स हो। So 7 sevens are 49. 3 is left from it. 35 हो गए। 7 5s are 35. 45 टाइम्स में जा रहा है, ठीक है। So 2 into 22 into 45 into this 5 to 5 आप इसको लिख सकते हो न्यूमरेटर में, एंड इन डिनोमिनेटर 4 zeros आप लिख सकते हो। अब आप क्या करोगे? मैंने आपको बताया कि सारे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करने हैं। ओके, मल्टीप्लाई करोगे आप, and in denominator you can write this zeros, and after 4 decimal places जो भी आंसर होंगे after 4 decimal places 1 2 3 4 Excuse me, ma'am. decimal place कर दो। Excuse me ma'am. yes yes Ma'am 5 to 5 divided by 7 result is 75 not 45. मैम 75 आ रहा है। yeah sorry this is not 45। 7 sevens are 49। yeah this is 70। ठीक है, so आप इसको मल्टीप्लाई करोगे। you know that उसके बाद सॉल्व कैसे करनी है? और everyone will you do it? Yes ma'am. मैम हो जाएगा। सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि हमने ये इनर रेडियस हमने क्यों नहीं अप्लाई किया, आउटर क्यों अप्लाई किया? बिकॉज क्वेश्चन में क्या पूछा है? आउटर कर्व सरफेस एरिया पूछा है। बट इन प्लेस ऑफ इट इफ द क्वेश्चन इज वाज आस्किंग अबाउट इनर कर्व सरफेस एरिया, देन व्हाट विल बी योर आंसर? आप क्या करोगे? 5 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे आप, ठीक है। यस मैम। Now the next question, this is I think last question of this exercise, and one request to all of you, आप लोग कुछ क्वेश्चंस खुद से भी ट्राई करें बिकॉज क्वेश्चन सारे हार्ड नहीं होते। अगर आप ट्राई करेंगे तो मे बी सॉल्व हो जाए।
क्वेश्चन नंबर 9 ये क्वेश्चन मैं आप सभी से आस्क करूंगी बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है. A right circular cylinder enclose a hemisphere of radius r. You can see here this picture. आप ये देख सकते हो राइट सर्कुलर सिलेंडर, अ सिलेंडर जस्ट इनक्लोज अ स्फीयर. इसकी जस्ट अंडर में क्या है आप देख सकते हो, क्या है, स्फीयर है, ठीक है. ऑफ रेडियस आर, जिसकी जो रेडियस है वो कितनी है, आर. तो अगर आपकी स्फीयर की रेडियस आपकी आर दी हुई है तो व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ दिस सिलेंडर, वो भी क्या होगी, 2r. सेम होगी. नो, यही मैं आपको बता Ma'am, रही हूँ. 2r. नो नो नो, R ही होगा. सी दिस इज द डायमीटर सेम होगी and दोनों this is की. your radius. So जो Yes, ma'am. रेडियस आपकी स्फीयर की होगी सेम रेडियस किसकी होगी, सिलेंडर की भी होगी, ठीक है. दोनों की रेडियस सेम होगी. नाउ surface area of sphere, first question is asking about surface area of sphere. So Sphere. what will be the formula, 4 pi r square. 4 4 pi pi r r square. square. 4 pi r स्क्वायर. तो यहाँ पर आप सिंपली लिख सकते हो स्फीयर का है तो आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा 4 pi r स्क्वायर, ठीक है. कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, 4 pi r square. 4 pi r square. नाउ आई एम टेलिंग यू कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. क्या होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर? नहीं. Pi r है. 2 pi rh. 2 pi r h. Yes. Curve Yes. surface area of cylinder is 2 pi RH. Okay. अब यहाँ पर आपके पास देखो मैंने अभी जस्ट बताया दिस इज योर सिलेंडर और सिलेंडर में आपकी क्या है, रेडियस आपकी इसकी क्या है, आर है. तो यहाँ पर आप सिंपली आप क्या लिखोगे 2 पाई आर. यहाँ तक तो ठीक है, आपने रेडियस इसकी आर ले ली. व्हाट इज हाइट? सो हाइट क्या होगा, तो हाइट में आपको बता रही हूँ दिस इज योर रेडियस ऑफ स्फीयर विच इज आर एंड दिस इज ऑल्सो आर. तो 2r. आर प्लस आर टोटल हाइट कितनी हो 2r. जाएगी, 2r. 2r, right? So here we can multiply with this 2 pi r. हम क्या h की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2r. Now what is your curved surface area of cylinder? 4 pi r square is answer. So it will be also 4 pi r square. So इससे हमें ये समझ में आया कि अगर कोई सिलेंडर एंड उसके जस्ट पूरे आप टॉप एंड बॉटम को, ठीक है, यहाँ पर अगर स्फीयर आप डालते हो तो दोनों की जो सरफेस एरिया होगी वो सेम होगी क्योंकि आपने पूरी सिलेंडर की एरिया को कवर किया है. किससे कवर किया है, स्फीयर से कवर किया है. सो दोनों की जो सरफेस एरिया होगी वो क्या होगी, सेम होगी, ठीक है, स्फीयर की भी एंड सिलेंडर की भी. राइट. नाउ यू हैव टू फाइंड इन थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको क्या फाइंड करनी है, रेशियो ऑफ द एरियाज. अब इन दोनों की रेशियो बतानी है. सो इट इज वेरी सिंपल. रेशियो क्या होंगे, 1 ratio